Hello, Gemini people. Welcome to my love reading. It's a reading about you and your partner. It's a combined reading, so take it as it resonates. This side could be yours, Gemini people. This side could be your partner's, or it could be that this side is your partner's and this side yours, Gemini people. So, in this kind of love reading, energies could flip anytime. So, take it as it resonates. Whatever resonates with you, just take it. Whatever resonates with your partner, just take it that way. Okay? Cross checkers, it's a message for you also. Just take it as it resonates with you. You can simply flip the energies. That is what you need to do and nothing else, because in this kind of reading these things do happen. Energies can flip. Okay, so it's a bi-monthly reading for you, Gemini people, from 15th of September to 30th of September. You can watch it as a Gemini sun sign, Gemini moon sign, Gemini rising or ascendant sign, and Gemini Venus sign. Since it's a love reading, Venus is given importance in this reading since it's a goddess and planet of love. So that's why Venus is given importance. Okay, so let's start with your reading, Gemini people. I'll be using 4 different oracle decks. Okay, the first one is of lovers oracle deck. The second one is of romance angels oracle deck. Third is of true emotions oracle deck, and the fourth deck would be of fairies oracle deck. Okay, universe, please guide the Gemini people and their partners in their respective love lives, what they need to know and how do they need to better their love life. Please guide them, universe. Please guide the Gemini people and their lovers and their partners. Please guide the Gemini people and their partners, universe. Okay. Card of feelings, card of intentions, and card of actions. This is how it is divided into 3 segments. Okay, Gemini people, I hope it's clear to you. Let's see, start with your reading. Okay, the first card says, this is the card, only time will tell. Okay, only time will tell. Let's see what the angel has in store for you. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. If you are thinking that if you can save your relationship, कभी कभी ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में, अपने लव लाइफ में, things do happen or things do take a different kind of turn. So negative turn आता है. So आप शायद सोच रहे हैं, आपके फीलिंग्स में है, only time will tell. अपने ऊपर भी कुछ काम कीजिए. सिर्फ वक्त पे छोड़ देने से हमेशा नहीं चलता है. प्लेफुलनेस लाइए अपने ज़िंदगी में. सीरियस हो सकता है आप बहुत सीरियस रहते हैं अपने लव लाइफ में, ये शायद आपके पार्टनर को पसंद नहीं आता है, या फिर आपके पार्टनर रहते हैं आपको पसंद नहीं आता है. इट कैन बी इधर वे, just flip the energies. So angels are guiding you to bring playfulness in your life. Okay, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun and shine. अपने रोमांस को रिकैप्चर कीजिए. अपने इनर यूथफुल जो स्पिरिट है, जो चाइल्ड स्पिरिट हम लोग के अंदर है, यूथफुल स्पिरिट जो अपने हम लोग के अंदर है, उसे बाहर लाइए. अलाउ इट टू शाइन. बी प्लेफुल विथ योर पार्टनर. फन मोमेंट्स एक साथ शेयर कीजिए. हंसी मजाक कीजिए एक साथ. बाहर घूमने जाइए, आउटिंग पे जाइए. हमेशा सीरियस रहने से लव एनहांस नहीं कर पाएगा.
ओके, सो तब आप डेफिनेटली अपना लव लाइफ बचा सकते हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव एंड एनहेंस योर लव लाइफ. Moving on to the next card of intentions. Secret admirer. Gemini people, it's a card of secret admirer. This is how the card looks. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. It could be you, either Gemini people, or it could be someone in your life who is admiring you from afar. Okay? Which you don't know now. So it could be either way. Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. वो बता नहीं रहा है, बयान नहीं कर रहा है या फिर बयान नहीं कर रही है, लेकिन सीक्रेटली आपको एडमायर करती है या करता है. Romance angel says, retreat. It's time to disconnect from the world. Those who are facing, those Geminis who are facing कि आपके लव लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है. It's a time for a break. You need a break. It's time for retreat. It's time to disconnect from the world. कभी कभी होता है हम लोग की लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाता है एक साथ. हमारा लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड होता है, अफेक्टेड होता है, हैम्पर्ड होता है इससे. सो यू आर बीइंग आस्क्ड बाय द एंजल कि एक साथ वक्त निकाल के दोनों एक साथ कहीं घूमने जाइए, रिट्रीट में जाइए, घूमिए फिरिए. यहाँ पे भी ये कहा गया है प्लेफुलनेस. अपने रिलेशनशिप को ऐसे और आगे बढ़ाइए, इम्प्रूव कीजिए अपना बॉन्ड और डीपन कीजिए. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होइए, फ़ोन से डिस्कनेक्ट होइए, बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट होइए, अपने लव लाइफ को बचाइए. सारा वक्त, एनर्जी, अटेंशन, फोकस अपने लव लाइफ को दीजिए. हो सकता है आपका लव लाइफ हैम्पर कर रहा हो जेमिनी पीपल, इधर फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर पार्टनर साइड. सो take time out, retreat. It's time to disconnect from the world. Okay, let's see what the action card says. This is how the card looks. It says, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. See, these are the circumstances in your life जिसके लिए आपको कहा गया है take time out. It's time to disconnect from the world. हो सकता है आप मेंटली बहुत बॉग डाउन है, इसके लिए आपका लव लाइफ हैम्पर कर रहा हो. Highly possible, Gemini people, either from your side or from your partner's side. So both of you take time out, be together, go somewhere out, retreat, a time for retreat, you know. Be playful with each other, have some fun time together, be light-hearted with each other. Don't be serious every time, every moment. It's not done. Certainly it's not done. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. खुशी आप डेफिनेटली पा सकते हैं. सिर्फ आंख बंद करके अपने आप को बोलिए that you deserve to feel joy. You can allow joy into your life regardless of the circumstances. कोई भी circumstances हो, joy या joyfulness आप अपने लाइफ में, लव लाइफ में ला सकते हैं. ये विश्वास मान के चलिए. इसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए. मेरे यूट्यूब चैनल पे मैनिफेस्टेशन के ऊपर, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर वीडियोस है, उसे रेफ़र कीजिए. मैनिफेस्टेशन वो होता है जो थॉट से, डिज़ायर, ड्रीम से हम लोग रियलिटी में लाते हैं. कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्या होता है मैनिफेस्टेशन, इस वीडियोस को मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, रेफ़र कीजिए और नॉलेज बढ़ाइए और अपने लव लाइफ में इम्प्रूव कीजिए, सुधार लाइए. Whatever circumstances you are facing, regardless of your circumstances, you will currently find joy in your love or in your love life within yourself. Okay?
The angel says soulmate. Yes, this is your soulmate. देखिए यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर का कार्ड आया था. Okay, so it is highly possible that this secret admirer could be your soulmate. Gemini people, it is highly possible. It could be either from your side or from your partner's side or someone else's side. The person you haven't met yet. हम लोग मिले ही नहीं हैं, सिर्फ सीक्रेटली एडमायर करते हैं. तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं आपको कि इट कुड बी हाईली पॉसिबल दैट ही और शी इज़ योर सोलमेट. येस, दिस इज़ योर सोलमेट. ओके, मुबारक हो आपको, आपका सोलमेट मिल चुका. और जो जो चेंजेस करना ज़रूरी है अपने लाइफ में, इट कुड बी फॉर लवर्स, it could be for married people, married couple or non-married couples. It could be for anyone. जो करने के लिए गाइडेंस के तौर पे, पॉजिटिव गाइडेंस के तौर पे एंजल्स यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, प्लीज़ इसे पे हिट कीजिए, इसे गौर फरमाएं और अपने ज़िंदगी में, लव लाइफ में सुधार लाएं. मूविंग ऑन टू द अदर साइड. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. This is the card and it says, deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. कभी कभी हम लोग के अंदर ही आंसर छुपा रहता है, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा. अपने आप को कनेक्ट कीजिए अपने आप से. ऐसे तो हम लोग सारा दिन में बहुत जन से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं. खुद से कनेक्ट करते हैं क्या? ज़रा सोच के देखिए. खुद से कनेक्ट कीजिए, खुद से बात कीजिए. आपको इनर वॉइस आपको आंसर देगा. आपका जो इनर गाइडेंस है, इनर सेल्फ है, हायर सेल्फ है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको आंसर देगा. आपको दूसरे के पास जाना नहीं पड़ेगा आंसर के लिए. कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आगे, क्योंकि आंसर आपके अंदर है. सिर्फ सुनने की ज़रूरत है. इसके लिए खुद को कनेक्ट कीजिए अपने सोल से. अंदर मतलब अपने सोल से एक साथ बैठिए, माइंड को, दिमाग को शांत कीजिए, कामनेस बरकरार रखिए, पीस बरकरार रखिए अंदर. तब जाके वो आंसर धीरे धीरे ऊपर आएगा, आपके माइंड तक आएगा. नहीं तो वो अंदर ही दब के रह जाएगा. सॉरी, आप सुन नहीं पाएंगे. इसलिए अपने आप को लेके एक शांत जगह, एकांत में बैठिए, मेडिटेट कीजिए, देखिए क्या कह रहा है आपके दिल. अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है आपके लव लाइफ में, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, कन्फ्यूजन में कोई है, डिलेमा में कोई है, तो अंदर की बात सुनिए, इनर वॉइस की गाइडेंस को मानिए, वहाँ से गाइडेंस लीजिए. आपका इनर वॉइस, आपका सोल ही आपको गाइड करेगा. किसी और से आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. लेट्स सी व्हाट द रोमांस एंजल्स हैज़ टू से. रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. इट सेज रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. ये फीलिंग्स के कार्ड में ही आया है. ओके, सो रोमांस एंजल्स आर सेइंग, अगर आप, हो सकता है अगर आप डिलेमा में हैं, कन्फ्यूजन में है कि क्या मेरा फीलिंग्स रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के प्रति, वेदर इट्स ही और शी, आप अपने जिसको पसंद करते हैं, शायद सीक्रेटली एडमायर करते हैं, क्या आपका फीलिंग्स रोमांटिक है उस पर्सन के प्रति, उस इंसान के प्रति. तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन फ्रॉम द एंजल्स दैट यू आर हैविंग अ रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रोमांटिक इनफ. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. जाके अपने पार्टनर को बताइए. आपके अंदर आप जो आंसर ढूंढ रहे थे, आपको गाइड किया गया है. समझ रहे हैं आप? आपको गाइड किया गया है थ्रू रोमांस एंजल्स दैट वॉट एवर फीलिंग्स यू आर हैविंग फॉर दैट अदर पर्सन, ही और शी,
These feelings are romantic feelings. You can proceed further. Okay? You can proceed further in your love life and make it a good and happy one and a blissful one. Moving on to the next card. It says, when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. हम लोग ज़िंदगी में खाली हाथ आते हैं, ज़िंदगी से खाली हाथ वापस जाते हैं. जो लेके जाते हैं वो है आत्मा. लेके आते हैं, आत्मा लेके जाते हैं, शरीर को छोड़ जाते हैं. हम सबको ये पता है, isn't it? सो जो लेके जाते हैं आत्मा के साथ साथ क्या लेके जाते हैं? ब्यूटीफुल मेमोरीज लेके जाते हैं, दैट वी हैव शेयर्ड विद दोज विद द लव्ड वंस. अपने लव्ड वंस के साथ जो मेमोरीज हम लोग शेयर किए हैं उसी को वापस लेके जाते हैं. उसके बेसिस पे कर्मा डिसाइडेड होता है. फिर हम लोग जन्म लेते हैं अपने किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, किसी मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ को और आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए हम लोग फिर से वापस आते हैं, जन्म लेके, नया जन्म लेके, नए रूप में. मूविंग ऑन टू द एंजल गाइडेंस कार्ड. Stay optimistic. It says stay optimistic about your love life. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. ये अगर confusion जैसे यहाँ पे भी था, only time will tell, यहाँ पे भी था, सो यही कहा जा रहा है आपको in the form of angelic guidance that stay optimistic about your love life. Don't have negative thoughts regarding your love life. Stay positive, stay optimistic, have positive thoughts. If you are not having any positive thoughts, create a positive thoughts. You know, we can create our positive thoughts. We can build positive thoughts. We can choose positive thoughts. We have the power to create. We have the power to choose. So choose your thoughts wisely. ऐसे कोई भी thoughts आए, negative thoughts आए, उसके ऊपर मत सोचिए इतना, उसे डिस्कार्ड कीजिए. मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस हैं. प्लीज़ इसे रेफ़र कीजिए, देखिए, जानिए पॉजिटिव थॉट्स कैसे ला सकते हैं हम लोग माइंड में, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता है, जिसके बेसिस पे हमारा ड्रीम्स या थॉट्स रियलिटी में आता है, ट्रांसफॉर्म्ड होता है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अपने लव लाइफ को और बेहतर बनाइए, नेगेटिविटी से बाहर आइए, पेसिमिज़म से बाहर आइए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, ऑप्टिमिज़म पे भरोसा कीजिए, पेसिमिज़म पे नहीं. पेसिमिज़म आपको कुछ नहीं देगा. अगर कुछ दे सकता है तो दुख, दर्द, अशांति, यही सब दे सकता है, अच्छा कुछ नहीं देगा. सोच अच्छा रखिए तो सब कुछ अच्छा होगा. सोच पॉजिटिव रखिए तो सब कुछ पॉजिटिव होगा. सो दैट्स वाई यू आर बीइंग आस्क्ड बाय द एंजल्स टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. Since it's a love reading, obviously you are being said and guided to stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Only time will tell कि अगर बात है तो this is what the angels are saying. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. निराश मत होइए. अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई आया नहीं है, ऐसा भी हो सकता है किसी जेमिनी के साथ कि अभी तक कोई है नहीं आपके लव लाइफ में, लव पार्टनर बोल के कुछ है नहीं, तो ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, डोंट हैव नेगेटिव थाट्स, बिल्ड और क्रिएट पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिव एफर्मेशन कीजिए, मेरे वीडियोस को रेफ़र कीजिए, हेल्प योर सेल्फ आउट. You have to work hard, my dear. You have to work hard. सिर्फ टाइम पे भरोसा करने से नहीं होता है, खुद को भी काम करना पड़ता है, isn't it? Positive thinking and faith will bring you romance. This is what is being guided to you. Moving on to the next card, balance. This card says balance.
दिस इज़ हाउ द कार्ड लुक्स. इट सेज बैलेंस. देखिए यहाँ पे इन योर इन एंड यंग का एनर्जी है. अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस कीजिए. यही होता है यिन यांग. यांग होता है मैस्कुलिन एनर्जी, इन होता है फेमिनिन एनर्जी. यहाँ पे जो सर्कल आपको दिख रहा है ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का सर्कल है जो हमारे अंदर रहता है. हमारे अंदर कुछ फेमिनिन एनर्जीज भी होते हैं, कुछ मैस्कुलिन एनर्जीज भी होते हैं. किसी का मैस्कुलिन एनर्जीज irrespective of whatever sex you might be, whether you're a male or a female, किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जीज ज़्यादा होता है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो. किसी के अंदर फेमिनिन एनर्जीज इन एनर्जीज ज़्यादा होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. सो यही एनर्जीज अपने अंदर आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है. हम लोग अगर अपने अंदर अपने एनर्जीज को बैलेंस करें तो बाहर भी वो बैलेंस हम लोग दूसरों के साथ भी कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेबिलिटी इज ऑन यू, ऑन योर ओन सेल्फ. ट्राई दिस ऑन योर ओन सेल्फ फर्स्ट. अपने एनर्जीज को बैलेंस कीजिए. अगर आपका एनर्जीज ही खुद डगमग डगमग करने लगे, अप डाउन होने लगे, तो आप दूसरों को भला कैसे मैनेज कर पाएंगे, है ना? ज़रा सोचिए इस बारे में. अगर आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे. आपका लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. इसलिए अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने मेंटल लाइफ को बैलेंस कीजिए, लाइफ सिचुएशंस को बैलेंस करके चलिए. इसके लिए आपको खुद अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा. द इन एंड यंग एनर्जीज, द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा. तभी जाके आप अपने लव लाइफ में बैलेंस ला पाओगे, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ला पाओगे, अपने कोई भी सिचुएशन में आप बैलेंस ला पाओगे, फैमिली लाइफ में बैलेंस ला पाओगे अगर आपके अंदर बैलेंस हो तो. Isn't it? This is how you can maintain balance. Let's see what the angels are saying. Chemistry. There is a strong magnetic attraction here. This is the card, and this is what the guidance is. The angels are saying chemistry. There is a strong magnetic attraction. जो जेमिनीज ये जो सीक्रेटली एडमायर कर रहे थे या कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है, एंजल्स का कहना यही है कि ये कुछ जेमिनी के लिए हो सकता है, कुछ जेमिनी के लिए कुछ अलग बैलेंस वाला स्टोरी हो सकता है, कुछ जेमिनी के लिए सोलमेट वाला स्टोरी हो सकता है. ये सोलमेट का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है सोलमेट का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री होना तो बनता है, क्योंकि सोलमेट का बॉन्ड बहुत डीप होता है, बहुत गहरा, मीनिंगफुल, डीपन बॉन्ड होता है. पता चल जाता है खुद को कि ये मेरा सोलमेट है. एक ही सोल ग्रुप से बिताते हम लोग होते हैं. अलग अलग सोल ग्रुप्स होता है, यू नो. और जानेंगे और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सब बारे में. पास्ट लाइफ में शायद आपने एक साथ बिताया है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन सोल का रिश्ता था, बहुत नज़दीक थे आप लोग. तभी सोलमेट फिर वापस आते हैं इस जन्म में. तब जाके लगता है कि बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाली बात है, बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाली बात है. हम लोग सबसे क्या मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं? नहीं ना. सबके साथ हमारा अलग अलग इक्वेशन होता है. तो सोलमेट के साथ ये होता है. बहुत अच्छा केमिस्ट्री है आप दोनों में, बिकॉज आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका बॉन्ड बहुत मैग्नेटिक वाला बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसीलिए केमिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग है. सो हो सकता है ये कुछ जेमिनी के लिए ऐसा बॉन्ड, चाहे ये सीक्रेट एडमायरर का हो या फिर आप ऑलरेडी जानते हैं उस इंसान को, या फिर आप लोग एक साथ है भी रिलेशनशिप में, तो आपके केमिस्ट्री के बारे में ये कहा गया है कि योर बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव, यू नो. Okay, so now I'll move on to the
True Emotions Oracle deck. Okay, True Emotions Oracle deck. I'll spread these cards. I'll pick up one card from this deck. Okay. It says, this is the card, this is how the card looks. It's a true emotion oracle deck card. It says, you touched my heart. It says, you touched my heart. Okay, now I'll be seeing the guidance from the fairies. Let's see what they have to say about the Gemini people or Gemini people's love life. Universe, please guide the Gemini people and their partner in their love life. Please let them know what they need to know. Please help them in their love life. I'll pick up one card from this deck also. This is a Fairies Oracle deck. Okay. Well, this card, as I already said, it says, you touched my heart. So, this could be very much, यहाँ पे soulmate का card आया, chemistry का card आया. Can you see these two cards? So, ये सब कार्ड्स अगर आया है तो ऑब्वियसली ये कार्ड आना तो बनता है, क्योंकि सोलमेट का बॉन्ड वैसा ही होता है. दे टचेस योर हार्ट, यू नो, इन मैनी वेज. सबके साथ ये हार्ट वाला फीलिंग नहीं आता है. सबके साथ, जैसा मैंने अभी कहा, इक्वेशन एक जैसा नहीं होता है. इतना डीप इक्वेशन नहीं लगता है सबके साथ. आपके साथ भी तो होता है ना ऐसा, आपको भी लगता है, पता चल जाता है कि इसके साथ मेरा कनेक्शन बहुत डीप है, बॉन्ड बहुत गहरा है, बहुत मीनिंगफुल है. इट्स फुल ऑफ एसेंस, फुल ऑफ मीनिंग, इट्स फुल ऑफ डेप्थ. सो you touched my heart. Gemini people, either this could be your feeling or it could be your partner's feeling, or the person who admires you, or the person you admire. You touched my heart. Well, the fairies are saying in the form of guidance, shine from within. Shine from within. Looks are only skin deep. Absolutely. Looks are only skin deep. Which means ये स्किन जितना जाता है लेयर्स में, एपिथेलियल लेयर्स, फिर और भी जितने लेयर्स हैं, ये स्किन डिप है. लुक्स, इसलिए गो बियॉन्ड लुक्स. मन को देखिए, उनके स्पिरिट को देखिए. सिर्फ लुक्स देख के जज मत कीजिए. मैं हमेशा कहती हूँ, बाहरी रूप से जज मत कीजिए. उस इंसान को पहचानिए, अंदर से उसको जानिए, वो कैसे है अंदर से. लुक्स आर ओनली स्किन डीप. ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विदिन. दैट्स वाई इट्स बीइंग सेड, शाइन फ्रॉम विदिन. सी, दिस इज द कार्ड एंड दिस इज व्हाट इट सेज. शाइन फ्रॉम विदिन. तभी तो ट्रू ब्यूटी बाहर आएगा, तभी ग्लो आएगा चेहरे पे, एक शाइन आएगा. अगर अंदर डलनेस हो तो चेहरे पे 1000 कुछ लगा लो आप, शाइन नहीं आएगा या नहीं आ सकता, या फिर होगा तो ऊपरी तौर से होगा. अंदरूनी शाइन ज़रूरी है. Isn't it? So shine from within. This is what the fairies are asking you. True beauty shines from within, and it's time for you to shine, my dear. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty.
जो जेमिनीज अभी तक, हो सकता है हम लोग कभी कभी प्यार में बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, डरते हैं, किसी बात को लेके डरते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने लव लाइफ को, तो हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होगा. सो दैट इज़ वाई यू आर बीइंग आस्क्ड एंड गाइडेड in the form of this message that shine from within. अंदर से निखार के लाइए अपने आप को, अपने रूप को, इनर ब्यूटी जिसे कहते हैं हम लोग, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर सोल. अच्छे थॉट्स लाइए. कैसे इनर ब्यूटी आता है? ये ग्लो चेहरे पे आता है, पीस जब अंदर होता है, शांति जब अंदर होती है, वो ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे, कंटेंटमेंट जब अंदर होती है, ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे ग्लो ला देगी. क्योंकि आपका दिल, दिमाग, तन, मन सब कुछ शांति से भरा होगा. आप ऑटोमेटिक ग्लो करेंगे, ऑटोमेटिक शाइन करेंगे, क्योंकि ये अंदरूनी शाइन है और यही ज़रूरी है. ऊपरी लेवल पे शाइन का कोई मायने नहीं है, नो मीनिंग एट ऑल. अंदर से अगर आप खुश नहीं हैं, दुखी हैं, शांति नहीं है आपके जीवन में, ऊपरी रूप से शाइन करना भी पॉसिबल नहीं है. अंदर से शाइन कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, बैलेंस मेंटेन कीजिए अपने लाइफ में. Isn't it? Know your heart, know your true feelings. Develop, inculcate, incorporate positive affirmation in your life. मैनिफेस्टेशन लाइए, उससे अपने अंदर हैप्पीनेस लाइए. पहले खुश रहना सीखिए अपने आप में, तभी आप दूसरों को खुश कर पाएंगे. नहीं तो दूसरों को खुश कैसे कर पाएंगे अगर अपने खुद ही आप खुश ना हो तो, है ना? इट्स हाईली रिलेटेड. अपने आप को खुश रखिए, पहले खुश कीजिए, जानिए, सीखिए, ज्ञान बढ़ाइए. मेरे वीडियोस को रेफ़र कीजिए मैनिफेस्टेशन के ऊपर, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर, कैसे अपने आप को खुशी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, पॉजिटिव एफर्मेशन कैसे कर सकते हैं. ये सब बारे में मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग पे वीडियोस है. सॉरी, प्लीज़ उसे रेफ़र कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपने जीवन को चेंज कीजिए. जेमिनी पीपल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लव लाइफ. ग्रो योर सेल्फ, ग्रो योर लव लाइफ, इवॉल्व. आई वुड से इवॉल्व होंगे तो ये शाइन ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा, फ्रॉम विद इन. सो प्लीज़ डू इवॉल्व. जानिए कैसे इवॉल्व होना है. स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ अ नेसेसिटी हम सब के लिए. इसीलिए हम लोग दुनिया में आते हैं, टू नो एंड लर्न एंड ग्रो स्पिरिचुअली. Isn't it? So, wish you all the very best, Gemini people and your partner. Have a great love life. Grow in life, grow in love, and wish you all the very best. Take care. Till then, bye-bye. See you in my next reading.